Hello students. In previous part we have discussed about the different types of cell organelles just like a cilia and flagella, and in this part we will discuss on centriole or centrosome. Centrosome and centrioles. What are centrosomes? These are the two cylindrical structures which are perpendicular to each other. The two cylindrical structure of centrioles which are perpendicular to each other. ये वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. पहली बात तो सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं. वी हैव ऑलरेडी ड्रा द डायग्राम ऑफ परपेंडिकुलर दिस लाइक स्ट्रक्चर्स. एक दूसरे के परपेंडिकुलर और उसके बाहर 9 पेरिफेरी के ऊपर ट्यूबुलिन प्रेजेंट होते हैं. 2 3 5 6 7 8 9 कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. That is the called centrioles. So what are centrosomes? The two cylindrical structure of centrioles which are perpendicular to each other, that is called centrosome. That is called centrosome. Centrosomes. Now centrioles, as we have discussed earlier, cilia and flagella. The basal body of cilia and flagella is centrioles. So what are centrioles? These are the basal body. These are the basal body of cilia and flagella. In animal cell contains centrioles, not in plant cell. Animal cell contain centrioles, not in plant cell. इनका स्ट्रक्चर किस वे से होता है? जस्ट लाइक ए cilia and flagella. इसमें भी ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं जो कि ट्यूबुलिन से बनी होती हैं, लेकिन इसका अरेंजमेंट जो होता है 9+0. बट इन cilia and flagella वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 9+2. centrioles आर द माइक्रोट्यूबुलिन या माइक्रोट्यूबुल स्ट्रक्चर्स which is made up of tubulin. The microtubules are arrangement 9 periphery and there is no centrioles, no microtubules present in center. So arrangement is 9+0. There are 9 microtubules are present at the periphery, but there is no microtubules present in center. Thus the arrangement of microtubules in centriole is 9+0. centrioles जो होता है सेंटर के अंदर किसी प्रकार का माइक्रोट्यूबुल्स में प्रेजेंट, जो पेरिफेरी के ऊपर 9 होते हैं. जस्ट वी हैव ऑलरेडी ड्रा in cilia and flagella. Firstly, we will discuss
In center, a nucleus which is known as a hub is present. Around the periphery, this is the periphery center, imaginary periphery. एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सर्कुलर शेप के अंदर, जिसमें 9 हम इसके पेरिफेरी के ऊपर माइक्रोट्यूबुल्स को अरेंज कर सकें. तो माइक्रोट्यूबुल्स ड्रॉ कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. इसमें माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं. पहली बात तो 9 पेरिफेरी के ऊपर, सेंटर में कुछ नहीं होता. सेंटर वाले को क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड हब. अब जो 9 पेरिफेरी पे प्रेजेंट हैं, इसमें माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, वो भी माइक्रोट्यूबुल वो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी ट्रिपलेट में होते हैं. सीलिया फ्लैजेला में डबलेट, जबकि सेंट्रियोल में ट्रिपलेट में होते हैं, जिसमें 3 माइक्रोट्यूबुल्स के स्ट्रक्चर होते हैं, ए बी एंड सी. ए कंटेन 13 microtubules, B and C both contain 10 microtubules. There are 3 microtubules present at one site. एक जो साइट है, माइक्रोट्यूबुल कितने हैं? 9. एक साइट के ऊपर 3 माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं, विच मेक ए ट्रिपलेट स्ट्रक्चर. ट्रिपलेट स्ट्रक्चर. अब 3 माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट हैं जो ट्रिपलेट स्ट्रक्चर बनाते हैं. वो कौन कौन से हैं? ए बी एंड सी. ए कंटेन 13 माइक्रोट्यूबुल्स, B contain 10 and C also contain 10. Just like one. तो स्ट्रक्चर बनेगा माइक्रोट्यूबुल्स का. दिस इज द A फुली. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. A contain 13 microtubules. B arise this one. It contains 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. And C also contain. In cilia and flagella only doublet structure, but in centrioles there are triplet structure. This one is B and C. It also contain 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. A B and C. These are triplet microtubule structure which is present at the periphery. A inside and C is outside. Firstly we draw A, B and C. Just this one, A, B and C. A inwards, B and C. A, B and C. ABC, A, B and C. A, B and C. A, B and C. And last one is these are the 9 periphery structure of microtubules in which A present inside and C outside. Means हर किसी के अंदर A, B, C इसी प्रकार से अरेंजमेंट होगा. A B C, A B C, A B C. फर्स्टली तो इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है इसका. आफ्टर ड्रा द डायग्राम ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स वी इरेज द इमेजिनरी लाइन. ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको आप इरेज कर दीजिए. दिस ओनली शो फॉर सर्कुलर पाथवे.
These are the 9 microtubules present at the periphery, but there is no microtubule present in center. Central centriole is known as hub. These microtubules which is present in triplet A towards the inside, which contain 13 microtubules. B and C, middle and outer, those are contain 10 microtubules. Clear? अब A जो होता है, A का इनसाइड करेक्टर जो होता है वो अटैचमेंट होता है C से. A अरेंज टू द C विच इज नोन एज लिंकर. ये किससे अटैच होंगे? लिंकर से. और लिंकर किस चीज के बने होते हैं? नेक्सिन नाम के एक प्रोटीन से. A इनसाइड एंड C आउटसाइड. इसी प्रकार से इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा A टू C कुछ इस वे से, जस्ट लाइक इज ए क्लॉकवाइज अरेंजमेंट. क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा. उसके अंदर का जो डेंस मटेरियल है, इस डेंस मटेरियल के अंदर दो प्रकार के डेंस मटेरियल होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई. एक्स जस्ट नियर टू द ए माइक्रोट्यूबुल्स, एक्स नियर टू द माइक्रोट्यूबुल्स, एंड वाई विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू माइक्रोट्यूबुल्स एबीसी एंड ट्रिपलेट्स. दिस इज द वाई. एक्स नियर एंड बी सेंटर, एक्स वाई. एक्स आप एक्स ड्रॉ कर लीजिए पहले. दिस इज द डेंस मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, एंड वाई बिटवीन द टू माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ ट्रिपलेट. इनका जो अरेंजमेंट होगा जस्ट लाइक एज ए कार्ट व्हील. ए माइक्रोट्यूबुल्स अटैच टू द डेंस एक्स बॉडी के साथ. ये एक्स बॉडी है, रेड वाले जो वाई बॉडी है. ए का डायरेक्टली अटैचमेंट किससे होता है? एक्स बॉडी से. ए का डायरेक्टली अटैचमेंट एक्स बॉडी विच प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. ए डायरेक्टली अटैच टू द एक्स बॉडी, एंड वाई बॉडी विच इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ द ट्रिपलेट. दिस वाई बॉडी अटैच टू द लिंकर. Y body attached to the linkers. Linkers are made up of a Nexin protein. Linkers, Nexin protein. Firstly, again, in matrix there are two bodies, X body and Y body. These are the dense material. X body is directly attached to the A microtubules, and Y body which is attached to the linkers, and both X and Y provide the mechanical support to the centrioles. Then the X body, जो X body से अटैच है A, ये X body से जो Y से जो लिंकर से अटैच है, ये Y वाले कहां से? हब से अटैच हो जाएंगे. दिस मेक द हब अटैचमेंट. और ये हब से अटैचमेंट करते क्या बन जाएगा? स्पोक्स, क्योंकि रेडियल स्पोक कहलाएंगे ये. कितनी है ये? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and this one is the only indication for the hub. These are the Y bodies अटैचमेंट करते हैं. क्या बना दिया? रेडियल स्पोक. Radial spoke attached to the hub, central portion, and it makes the centriole structure which is useful for the formation of cilia and flagella. Cilia और flagella का जो origin place है, that is the centrioles. What are centriosomes? These are the two perpendicular structures, two perpendicular cylindrical structure of centrioles which is known as centrosome. Again, what is centrioles? These are the basal body of cilia and flagella. Cilia और flagella का जो basal body इसको क्या बोलते हैं? centrioles. Centrioles एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते. दूसरा, सेंट्रियोल जो होता है माइक्रोट्यूबुल से प्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूबुल से बना होता है, और माइक्रोट्यूबुल जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है. इस माइक्रोट्यूबुल्स में 9+0 का अरेंजमेंट होता है. मतलब पेरिफेरी के ऊपर माइक्रोट्यूबुल्स 9 होते हैं और सेंटर में कोई नहीं होता, जिसको हब बोलते हैं. जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है वहां पर माइक्रोट्यूबुल्स ट्रिपलेट में होते हैं. मींस 3 ट्रिपलेट वाले माइक्रोट्यूबुल्स ए बी सी. ए के अंदर 13 माइक्रोट्यूबुल्स, बी में 10, सी में भी 10.
और इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है कि ए इनसाइड एंड सी आउटसाइड। ए क्लॉकवाइज अरेंज टू द सी विच मेक ए कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, इट मेक्स ए कार्ट व्हील like structure. Then A attached to the C is known as a linker. Linker is made up of another protein called nexin protein. In matrix there are two dense body, X body and Y body. X body is attached to the A microtubules and Y body attached to the linker which makes a radial spoke. And just this arrangement is known as cart wheel like structure which is made up of, which is called centrioles. Clear?